He has very interesting personality. Bapu Sarvagod has trained many well-known personalities from film industry, from ad agency, from media also. Bapu Sarvagod is member of Mumbai University Screenplay Syllabus Draft Committee, panel of academics Times of India. He has bestowed upon Bharati Kala Ratna Award by Sahyog Foundation. Bapu Sarvagod, now uh, screen is yours. बापू हाँ नमस्कार। क्या सभी लोग सुन सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, सुन सकते हैं। यस यस यस। यस यस यस। क्योंकि हमारे पास काफी कम वक्त है, so just try to concentrate on the things which I'm going to share with you, dear friends. क्योंकि आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा टाइम है। So it's very amazing experience to talk with all the Leos and Lions and all the social personalities who have contributed in the social things as well as the business and cultural life. Dilip ji, personally, I'm very thankful because of your vision, because of your particular skill to identify the people's potentials. So, see, when we're talking about a filmmaking and about the media and about opportunities in film direction, script writing, acting, and all these things, it means it's a very, very इंटरेस्टिंग फिनोमिना, क्योंकि पिछले 20 सालों में और उसमें भी पिछले 10 सालों में जो ट्रिमेंडस बदलाव आया है फिल्म इंडस्ट्री में, and the result of that thing is anybody can become a star, anybody can become a film producer, anybody can become an actor, and it's not easy, it's not difficult जो पिछले 25-30 साल पहले था. So when I say it's about a filmmaking stuff, so see, try to understand. मेरे कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूंगा जो हाँ, तो when we say film direction, production, acting, script writing, can you listen everybody? Yeah, no problem. काही प्रॉब्लेम नाही ना ऐकण्यामध्ये? Yes, नहीं, sir. नहीं. Okay, so see, first thing we'll try to understand, because it's a very vast subject. It's a very what you can say. It's a very almost like a sea. So in these things, we need to understand the entire journey of a cinema, that is right from idea to the final frame on the screen. That is called idea to screen. So देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, सब लोग जानते हैं उनको, उनका एक स्टेटमेंट हमेशा याद रहता है मुझे कि rather than scientist, an artist is very, very important. Why it is very important? Because artists have a capacity to imagine the stuff. आर्टिस्ट के पास कल्पना शक्ति होती है, कलाकार के पास कल्पना शक्ति होती है, और उस कल्पना को मूर्त स्वरूप में to make it into the practical stuff, into the reality, then scientist works on that. So that's why ideas are very, very important. So cinema, film, any kind of art, it's basically it's a projection of an idea. किसी की भी कल्पना का एक वो प्रोजेक्शन होता है, वो ऐसे प्रोजेक्शन होता है की लोक अमेज हो जाते हैं, लोक आश्चर्यचकित होतात, कारण कल्पना शक्तीच्या पुढे देव सुद्धा झुकतो. So what I mean to say, when I say a filmmaking, an idea, so it is said that idea is like a newborn baby.
व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज जैसे एक बच्चे को हम, एक नवजात शिशु को हम जिस तरह से संभालते हैं, उसे उसकी परवरिश करते हैं, उसी तरह से आइडिया आइडिया को अगर सही ढंग से हमने हैंडल नहीं किया तो आइडिया विपरीत हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान हो, ये किसी का तो एक आइडिया था, इट वॉज नॉट अ रियलिटी। किसी के तो आइडिया थी, उस आइडिया को, इट वॉज बेसिकली आइडिया ऑफ मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था। उस आइडिया को जीना जी ने हाईजैक किया और वो आइडिया को प्रैक्टिकल ला के फिर पाकिस्तान बिकेम्स अ रियलिटी। सो इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ समबडीज आइडिया। आज जितने भी रिलीजन है, जितनी भी नेशंस है, जितने भी राज्य है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कंसेप्ट है, दैट ऑल दीज थिंग्स आर द projection of somebody's idea. That's why idea is very important, because idea is a, it's an atom. अगर उसको आप सही ढंग से प्रयोग करते हैं उसका, तो उसके अणुशक्ति से हम ब्रह्मांड की निर्मित कर सकते हैं, या फिर किसी का निर्माण किया हुआ विश्व हम नष्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आइंस्टाइन ने जब बॉम्ब बनाया है, तो उसके बाद ही फेल्ड दैट कि पीपल यूज हिज आइडिया फॉर वेरी रॉन्ग पर्पस। And see why the social organizations like Lions Club or Rotary clubs or all other NGOs, people are working in cultural and social development, because somehow they see some wrong ideas are taking place on the mind of society. एंड सोसाइटी में सबसे आसान होता है, कोई भी अगर गलत आइडिया होता है, वो इस तरह से प्रोजेक्ट होता है कि आसानी से लोग उसका बलि का बकरा बन जाते हैं। सो सिनेमा इज अ बेबी ऑफ जस्ट 100 years बैक, बट यू डोंट नो कि our entire life has been covered with this media, this film media. हमारे रोल मॉडल, हमारे जीने का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल, सारा का सारा सिनेमा से प्रभावित है। तो ये प्रभावित करने वाले जो लोग हैं, वो, उनके बारे में अगर हम कहें तो हमें अलग से एक वेबिनार लेना होगा कि वो किस तरह के लोग हैं जो इस माध्यम में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कही जाती है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। 1.5 से 2 हजार फिल्में बनती है सालाना, और कई सारे लाखों अभी छोटे प्रोजेक्ट, वेब सीरीज, सीरियल्स, शॉर्ट फिल्म्स, एमेच्योर फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, इतनी सारी फिल्में बनती है। मगर आपको पता है कि इसमें से कितनी फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस होती है, या इट स्टैंड्स एट अ यूनिवर्सल लेवल? वेरी फ्यू। Why it's happened? Because the people who are indulged in this art, or the people who are involved in this art, they are, they come from the different schools, different ideologies, and they are, this rarely our filmmaker tries to make it with a proper design, proper conceptualization. खैर, आगे जाके हम बात करेंगे कि किस तरह से सिनेमा सोसाइटी के वैल्यूज को चेंज कर रहा है या चेंज किया है। तो जब हम सिनेमा की बात करते हैं, तो सिनेमा में देखिए कि इतना बड़ा फील्ड है, तो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म, एनिमेशन फिल्म, ये 5-6 कैटेगरीज है जो प्रमुख तौर से जिसमें लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज है। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, जो हम बीबीसी पर देखते हैं, डिस्कवरी पर देखते हैं, हिस्ट्री पर देखते हैं, आज तक पर देखते हैं, इंडिया टीवी पर देखते हैं, दूरदर्शन पर देखते हैं, हर एक का अपना प्रेजेंटेशन अलग है। हेलो। हाँ,
Yes, yes. सुनाई दे रहा है? ओके. हाँ जी, हाँ जी. तो सी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स अगेन इट कम्स इन टू डिफरेंट फॉर्मेट्स. एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट जिस तरह से जो रियलिटी है उसे उसमें हमारा कोई भी मसाला तड़का न लगाते हुए जैसे लोगों के सामने रखना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्री. अगर हमारे यहाँ पर इंडियन न्यूज चैनल के न्यूज और बीबीसी की न्यूज दोनों में अगर हम फर्क रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि विच इज द मोस्ट बिलीवेबल न्यूज इज न्यूज कमिंग फ्रॉम. सो डॉक्यूमेंट्री एक है कि जो बायस्ड में से बताई जाती है या एक रियलिटी के तौर पर दिखाई देती है. सो we'll be talking about a feature film. So see, most of the film industry people knows that film industry का मतलब है फीचर फिल्म. थिएटर में जाके लोग देखते हैं, रिलीज होती है वो फिल्म. मगर अगर हम टेक्स्ट और लिटरेचर की बात करते हैं तो टेक्स्ट और लिटरेचर में सिनेमा से रिलेटेड मैगजीन्स या न्यूज़पेपर कितने परसेंटेज है? वो 0.000% भी नहीं है. जो बाकी सारे के सारे जीवन के जो विषय है उस विषय के बारे में लिटरेचर होता है, टेक्स्ट होता है, बुक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, कंटेंट होता है. Similarly, when we are talking about a feature film, so feature film एक 1% है जो एंटर फिल्म मेकिंग का पार्ट है and which is connected to the only entertainment. मगर अभी जिस तरह से फीचर फिल्म डेवलप हो रहे हैं, फीचर फिल्म का मतलब पहले हम समझते हैं. फीचर फिल्म इज व्हाट कि जो एक ऐसे कथा है, स्टोरी है, फिक्शस है कि जिसे पूरी की पूरी तरह से रिक्रिएट, रीमेक, रिक्रिएशन किया जाता है. उसमें एक्टर्स होते हैं, लोकेशन होता है, स्क्रिप्टेड डायलॉग्स होते हैं. सो फीचर फिल्म वो 1 मिनट का भी हो सकता है और वो 2 घंटे का भी हो सकता है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स दैट जब जब सिनेमा हॉल में जब लोग टिकट निकाल कर फिल्म देखने जाते हैं तो उसका मतलब है कि फीचर फिल्म में उनको पेट भर एक उनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए. कि जैसे प्रसाद खाने का एक टेस्ट होता है, फीलिंग होता है, ब्रेकफास्ट का होता है और डिनर का होता है. डिनर के तौर पर यू कैनॉट सर्व प्रसाद और प्रसाद के तौर पर यू कैनॉट सर्व द एंटायर डिनर. सो सिनेमा का कंटेंट जो है, सी कि जैसे जैसे अभी यहाँ पर दिलीप जी ने इंट्रोड्यूस करते हुए काफी अलग अलग लोगों के इंट्रोडक्शन दिए हैं कि जिसमें सक्सेस स्टोरीज दिखाई देती है. इट मीन्स देयर इज सम स्टोरी कि एक कुछ तो शुरुआत हुई थी, कुछ स्ट्रगल था और उसमें कुछ उनका हीरोइज्म है एंड फाइनली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट जिसे हम सक्सेस कहते हैं. वो सक्सेस का हर एक का अपना तजुर्बा अलग हो सकता है, हर एक कंसेप्शन अलग हो सकता है. सो द थिंग इज व्हेन वी आर trying to understand what are the opportunities in cinema, in a film making, तो वहां पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, कई सारी क्षेत्र ऐसे है कि जहां पर हजारों लोगों की जरूरत है. अभी आपको पता चल रहा है कि हाल ही में किसान का आंदोलन चल रहा है. तो ये जो किसान आंदोलन है उसमें किसान पूरे 80% हिंदुस्तान में फैला हुआ है क्योंकि उनका काम दिखता है, उनका प्रैक्टिकल वर्क है. उनके साथ डॉक्टर लोगों का भी स्ट्राइक हुआ था, उनके साथ कई लोग आंदोलन कर रहे हैं. कई सारे लोग अपने अपने बिजनेस में, अपने इसमें एंगेज है. तो हर एक का अपना एक कंटेंट होता है. सो कंटेंट इज व्हाट, कंटेंट इज एक्चुअली जैसे
एक मेडिसिन होता है तो उसमें एक कंटेंट होता है कि उसमें कौन से केमिकल्स है, कौन सी दवा है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है। वैसे सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो सिनेमा में ऐसे कई सारे सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर फिल्में बनना अभी बाकी है। सिनेमा डजंट मीन इट्स जस्ट अ लव स्टोरी की एक हीरो है, एक विलन है और एक हीरोइन है और फाइनली मिलन हो जाता है दोनों का। नेवर। जब हम इंटरनेशनल सिनेमा की बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड सिनेमा की बात करते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब ऑस्कर जैसी फिल्म में, जब फॉरेन कैटेगरीज में जब कोई फिल्म जाती है तो वहां पर ऐसे विषय होता है कि जिसमें यूनिवर्सल जो प्रॉब्लम्स है ह्यूमैनिटी के, उससे रिलेटेड कुछ इश्यू होता है, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, ह्यूमैनिटी के कॉम्प्लेक्स ऐसे इश्यूज होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट उन्होंने हैंडल किए होते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी सिनेमा बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, बस आपकी एक इच्छा होना जरूरी है। इट नीड्स ओनली just your will power, that you want to create a something. So अभी ऐसे नहीं है कि जिसके पास करोड़ों रुपया है, जिसके पास कोई तो फिल्म इंडस्ट्री का गॉड फादर है और फिर कोई तो पहचान है, फिर उसे एक्टिंग करने के लिए चांस मिलेगा, स्क्रिप्ट लिखने के लिए चांस मिलेगा, या इट्स नॉट लाइक दैट। नाउअडेज फिल्म इंडस्ट्री इज व्हाट, कि फिल्म इंडस्ट्री में film industry is open for all the people. सारे लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री ओपन है, बिकॉज द थिंग इज आप आपके जेब में पूरा फिल्म मेकिंग का टूल लेकर घूम रहे हैं। ये जो मोबाइल फोन है, ये जो मोबाइल फोन है, इसकी पावर आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये पेन है, पेन की कीमत क्या है? 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, 50, 100, 1000, 1000 रुपए का पेन हो सकता है, मगर उस पेन को वैल्यू कब आ जाती है? जब उस पेन से कुछ लिखा जाता है, उस पेन से कुछ ऐसे विचार डिलीवर होते हैं कि जिसमें कुछ मूल्य है, कुछ वैल्यू है। तो जो आज कैमरा आप जेब में लेके घूम रहे हैं, वो 4K है, वो 2K है, उसमें वो सारी कैपेसिटी है कि राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाने के लिए जो तरसते थे, कैमरा देखने के लिए तरसते थे, वो आज आपके जेब में है 24 आवर्स। तो जैसे पेन और पेपर कितने का होता है अगर खरीदने जाते तो ज्यादा से ज्यादा 25, 50, 100, 200, एकदम लग्जरी भी आप ये लेते हैं तो भी, यानी 200 रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो जाता है राइटर का। तो इतना अगर सस्ता इन्वेस्टमेंट है तो हर कोई राइटर क्यों नहीं बनता है? हाँ, तो राइटर वही बनता है जिसके पास विजन है, कलाकार वही बनता है जिसके पास कुछ विचार है। सो सिनेमा वही बना सकता है आपके पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, ना होने के बावजूद भी, कि जिसके पास एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। सो ये जो दृष्टिकोण है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो सिनेमा में अगर हमारा रोल मॉडल फीचर फिल्म है, सो फीचर फिल्म डजंट मीन दैट हमारे पास अमिताभ बच्चन होना चाहिए, अक्षय कुमार होना चाहिए, या कोई बड़ी एक्ट्रेस होनी चाहिए, या बड़ा कोई ये होना चाहिए। तो जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में, FTI है, कि जहाँ पे सिर्फ 10 लोगों का सिलेक्शन होता है हिंदुस्तान से, तो उस जमाने में दुनिया भर की फिल्में हम देखते थे और उस वक्त पता चलता था कि दुनिया भर में कितने प्रकार की संस्कृति है, कितने विभिन्न प्रकार से लोगों की जीवन को देखने की एक विचारधारा है।
आज एक क्लिक पर आपके मोबाइल पर ये सारे फिल्म, सारे फेस्टिवल, सारी चीजें अवेलेबल है। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक हमारा दायरा निश्चित करना होगा। उसमें अगर हम फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं तो ठीक है कि आई कैन नॉट मेक अ फीचर फिल्म, आई कैन मेक सम डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इतने सब्जेक्ट है, मतलब जितने सेक्टर्स है बिजनेस के, उस हर बिजनेस के ऊपर, सेक्टर के ऊपर फिल्म बन सकती है। उसका डॉक्यूमेंट्री बन सकता है, उसका यूट्यूब बन सकता है, उसका वेमियो बन सकता है, उसका ओटीटी के लिए फिल्म बन सकती है। तो आज के ज़माने में अगर आप कोई भी नेट पर आपका एक चैनल शुरू करते हैं, वहाँ पर आप कोई भी कंटेंट डालिए, 1 या 2 साल के बाद दैट चैनल स्टार्ट पेइंग यू अ लम सम अमाउंट। कि जैसे किसान खेती करता है, कि खेती में एक बार वो बेसिक मशागत करने के बाद, एक बेसिक सीडिंग करने के बाद उसे नर्चर करता है। सो आज के डेट में अगर हम अ, कहते हैं कि सिनेमा अगर बनाना चाहते हैं, अगर अगर हम तो जरूरी नहीं कि हम फीचर फिल्म से शुरुआत करें। हमारे पास अगर मोबाइल कैमरा है तो उसी से हम हमारी शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी का डीएसएलआर है, अगर किसी के पास थोड़ा प्रोफेशनल कैमरा कैमरा है, उसके साथ हम शूट कर सकते हैं। मगर जब हमारे हाथ में हथियार है तो इसका मतलब नहीं कि हम उसे कैसे भी चलाएंगे, कहां पर भी चलाएंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ विचार होना जरूरी है, हमारे पास कुछ थॉट होना जरूरी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल दिलीप जी ने जब मुझे बताया था कि लायंस क्लब का ऐसे कुछ करना है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि बचपन से देखता था मैं लायंस क्लब। तो लायंस क्लब के जब आई यूज्ड टू आई हैव स्टडीड इन म्युनिसिपल स्कूल। तो ये लायंस वाले लोग हमारे यहाँ पे कुछ आके चीजें बांटते थे, तो मुझे काफी क्यूरियोसिटी होती थी, ये लोग कौन है, ये अपने आप को लायन क्यों कहते हैं, ये इनकी खासियत क्या है, ये कुछ आम लोगों से अलग क्यों है। तो शायद आज उसका व्हाट यू कैन से उसका रिजल्ट पता चला कि लोग हैं हमेशा एक विचारधारा, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। तो क्यों अपनाना चाहते हैं? क्योंकि उसके पीछे एक ध्येय, उसकी साधना और एक निश्चित तौर पर एक समाधान, सैटिस्फैक्शन, और उसमें हमारे कार्य के, हमारे काम के, हमारे समाज के सेवा का एक समाधान उसमें होता है, छिपा होता है। बिकॉज़ हमें उसमें लिखा है कि ऑल दैट इज़ नॉट गिवन इज़ लॉस्ट। जैसे तो जब आप कोई एक विशिष्ट विचारधारा से आप एक समाज कार्य शुरू करते हैं, तो समाज में देखो आप आप कितना काम कर सकते हैं समाज में, समाज के लिए। एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ मैं आपको ना, बिकॉज इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड इट्स अबाउट सिनेमा। तो ये जो त्रिपुरारी पूर्णिमा होती है, तो त्रिपुरारी पूर्णिमा में पता है आपको कि लोग अपने गंगा में, यमुना में दिए छोड़ते हैं अपने मन्नत के लिए, कुछ इसके लिए, अपने अपने इसके लिए, अपने श्रद्धा का भाग है। तो स्टोरी जो है महाभारत की है। ऐसे ही त्रिपुरारी पूर्णिमा थी और यशोदा मैया अपने कृष्ण को लेकर ऐसे कई सारे दिए यमुना में छोड़ रही थी। अभी कई सारे लोग थे, हजारों लाखों दिए ऐसे लोग छोड़ रहे थे नदी में। और वहां पर एक जूनियर कृष्ण, छोटा कृष्ण भी था, एकदम बिल्कुल वो इतना था कि जूनियर केजी में था, अभी एडमिशन भी नहीं हुआ था उसका लॉकडाउन की वजह से। तो कृष्ण का कुछ अलग एक्टिविटी चल रहा था। तो यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण क्या कर रहा है, कि वो अपने घुटनों पर पानी में गया है और घुटनों पर पानी में जाके वो ऐसे कई सारे बुझे हुए दिए को उठा रहा है और जो जला हुआ दिया उसको जला के फिर से पानी में छोड़ रहा है।
ऐसे एक-एक करके वो बुझता हुआ दिया देखता है, उसे जलाता है और पानी में छोड़ देता है। तो यशोदा मैया हैरान हो गई, बोले, "अरे कृष्णा, ये कितने दिए जा रहे हैं, ऐसे बुझे हुए दिए जा रहे हैं, तू क्या सारी रात यहाँ पे ये दिए जलाते हुए बैठेगा?" तो कृष्ण ने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया। He said to his mama, "You know, mama, please listen. मैंने पूरे दुनिया का ठेका नहीं लिया है, मगर जहां तक मेरा हाथ जाता है, वो बूझा हुआ दिया मैं जरूर जलाऊंगा।" तो सी कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जहां तक पॉसिबल है अपने बस में, उतनी समाज सेवा हमें जरूर करती रहनी चाहिए। सो सिनेमा का जो आज माध्यम है, आप देखेंगे कि सिनेमा के माध्यम के ऊपर जब पिछले 100 सालों से आप देखेंगे, तो हमेशा उन लोगों का डोमिनेशन है या उन लोगों का प्रभाव रहा है, जिनका जो लोग उसके निर्माता है, जिसके उसके प्रोड्यूसर्स है, उसकी निर्मिति में जिन्होंने सहभाग लिया। सो आई एम टेलिंग यू माय ऑब्जर्वेशन, कि जब शुरुआती तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, तो सब्जेक्ट क्या रहते थे? तो संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत ये और संत हरिश्चंद्राची फॅक्टरी और हरिश्चंद्र राजा, तो सारे देव देवता माइथोलॉजी इस टाइप के सब्जेक्ट रहा करते थे। तो क्या उस वक्त कमर्शियल लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। मगर उस सिनेमा का जो प्रोड्यूसर था, वो जो आया था, वो डायरेक्ट नाटक के जो मंडली थी, नाट्य क्षेत्र, कला क्षेत्र के जो लोग थे, ऑल दिस पीपल, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पीपल, दे डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द सिनेमा एंड दे हैड अ रेडी कॉन्सेप्ट। अभी इसके पीछे और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि समाज की एक धारणा होती है, जिसे अभिधारणा कहते हैं। सो ये अभिधारणा पिछले 100 साल में काफी बदल चुकी है। जनजीवन, जो सामान्य जीवन का जो मूल मंत्र था जीने का, वो था अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। जो हमारे जीवन का, भारतीय लोगों के जीवन की नींव है, वही आपके व्यवसाय में, वही आपके कला में, वही आपके अध्यात्म में, वही सारी चीजें अहम थी। अगर आपके पिछले जनरेशन के लोगों की चीजें अगर आप याद है, तो सिनेमा के जो प्रोड्यूसर्स थे, वो उनके सब्जेक्ट भी वैसे ही थे, जो समाज के धारणा के अनुसार थे। और फिर धीरे धीरे प्रोड्यूसर की मानसिकता बदलने लगी। प्रोड्यूसर की मानसिकता कैसे होने लगी? फिर वो थोड़ा लिटरेट हो गया, उसे समझ में आया, वो थोड़ा इंग्लैंड अमेरिका जाके आया, वो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ गया। फिर थोड़े इनडायरेक्टली उस टाइप के सब्जेक्ट आने लगे जो पैट्रियट थे, इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने वाले सब्जेक्ट। क्योंकि सिनेमा का जो फिल्म मेकर था, प्रोड्यूसर था, उनकी धारणा वैसे थी। उसके बाद वो दौर चला, फिर 30, 35 से लेकर 40, 45, 7, 40, 50 तक चला। फिर उसके बाद आप देखेंगे, तो समाज की में वो एक जो जिसे कहते हैं न्यू रियलिज्म आने लगा, रेनेसांस पीरियड शुरू हो गया इंडियन इसमें। और फिर पृथ्वीराज कपूर, ये देवानंद, बिमल रॉय, सत्यजीत रे, दादा साहेब फाल्के, इन वी शांताराम, इस टाइप के जो लोग थे, तो उन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम करना शुरू किया। तो उसका एक कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप में काफी लोगों की हानि हो गई, काफी लोग मतलब नष्ट हो गए, कि मतलब अभी जो कोरोना के पीरियड में हमने जो देखा है कि महामारी की वजह से कितने लोगों का जनजीवन व्यस्त अस्त व्यस्त हो गया। तो उस वक्त यूरोप में आम आदमी खत्म हो गया था। और उस वक्त एक फिल्म बनी थी इटाली में, बाइसिकल थीव्स करके। और वो फिल्म देखने के बाद सत्यजीत रे, विमल रॉय और इन लोगों का जीवन शैली बदल गई, उनका सोचने का तरीका बदल गया। उनको लगा कि अरे, ये तो सामाजिक विषय पर भी हम फिल्म बना सकते हैं। अकीरा कुरोसावा जो जापानीज डायरेक्टर थे, उन्होंने भी वही फिल्म देखी और जापान में उन्होंने जाके
सेवन सामुराई करके फिल्म बनाई। और ये जो सेवन सामुराई फिल्म थी, ये सेवन सामुराई फिल्म का ऑलमोस्ट दुनिया के हर भाषा में एक रीमेक हुआ है। उसमें से एक रीमेक है शोले। तो आप सोचिए कि एक दिया जब जलता है तो उसके कितने सारे नतीजे निकलते हैं। अभी भी आप देखेंगे रात को हम सोते वक्त वो पुराने क्लासिकल गाने सुनते हैं। क्लासिकल गाने सुनने का सिर्फ उसका ट्यून ही नहीं, उसकी धुन ही नहीं, उसमें एक संगीत है और साथ में उसमें एक मतितार्थ है, उसमें एक अभिधारणा है, उसमें एक विचार होता है। And simple stuff, because whatever things they made, they created, like it's a creation of the divine creativity. जसं देवाचं काम करायचं असतं त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी सगळ्या कलाकृती निर्माण केल्या. ते डेडिकेशन होतं त्यांच्याकडे. लता मंगेशकर सारख्या कलाकार आणि अजून त्या काळामधले जे संगीतकार होते, रविशंकर, अजून नौशाद, असे असंख्य लोक आहेत की ज्यांनी जिन जिन लोगों ने वो एक भारतीय अभिधारणा जो है कि पिछले 50-100 सालों में जो हमारी धारणा में ये कला है, ये सिनेमा है, ये सारी स्टोरीज है, वो हम हमारे जीवन से निकाल नहीं सकते हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जब गुरुदत्त जैसे लोग सिनेमा में थे तो सी, अगर उनकी आप फिल्में देखते हैं कि उस वक्त उनकी फिल्में फ्लॉप थी। प्यासा जैसी फिल्में फ्लॉप थी, कागज के फूल उनका फ्लॉप था, मगर उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो विजन था, वो हजारों साल आगे था। जब गुरुदत्त का वो गाना है कि जला दो वो दुनिया जिन्हें नाज है, जिन्हें हिंद पर नाज है, कहा है वो लोग, तो आज भी क्या लगता है आपको कोई सिचुएशन उसमें बदल गई है? नेवर। मतलब आज भी आपको हिंदुस्तान में यू कैन सी द कंट्री इनटू द 23rd सेंचुरी एज वेल एज इन 8th सेंचुरी ऑल्सो। तो ये जो फिल्म मेकर्स है, ये जो विचारवंत है, ये जो कलाकार है, उस वक्त उस वक्त का जो हिंदुस्तान था, वो लाहौर से, कराची से जो भाग के आए हुए या स्ट्रगल करने के लिए आए हुए जो गुलजार जैसे लोग, जगजीत सिंह जैसे लोग, ऐसे कई सारे लोग थे कि जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपना मंदिर के माफिक, मंदिर के तौर पर उन्होंने उसकी साधना की। See, why I'm telling you? Because it's a history, because it's a new, it's a foundation. तो इसमें आप फ्यूचरिस्टिकली अगर आप सोचते हैं तो इसमें you will have to understand कि creativity is very very important stuff. तो लेखक मतलब राइटर का मतलब ऐसे नहीं है कि जो पेन और पेपर चला रहा है, टाइपिंग करने वाला कोर्ट के बाहर, वो भी तो राइटर होता है। मगर जब आप स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आप कुछ बनना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर is of course it's a technical step, but apart from that thing there must be some foundation, there must be some basic ideology in your thoughts. आज आप देखेंगे कि अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से लोग इंटरनेट पर पढ़ाई करके, सर्च करके अपने स्टाइल से फिल्में बना रहे हैं। कैमरा हर एक के जेब में है, तो उसका ये बटन उनको पता है कि कौन सा बटन करने से शूटिंग शुरू होता है, कट होता है, कैमरा कैसे भी घुमाओ। अभी जब तक हमें ये पता नहीं है कि उसका ग्रामर क्या है, पेन तो सभी का पास होता है, लिखना पढ़ना तो सभी को आता है, मगर जब तक वी आर नॉट हैविंग अ प्रोग्रामिंग, that programming for how to think in a particular way, in a particular format, in a particular application, तो इसीलिए स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत होती है। किस सिनेमा, जैसे बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर जो है, कि जैसे दिलीप साहब जो है अपने वो आर्किटेक्ट है,
तो बिल्डर तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, दिलीप साहब को क्यों हायर करता है? तो दिलीप जी है वो उसका आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं, ताकि बिल्डिंग कहीं पर भी साइंटिफिकली खड़ी हो जाए, गिर ना जाए। दैट्स व्हाई योर स्क्रिप्ट राइटर इज रिक्वायर्ड, योर डायलॉग राइटर इज रिक्वायर्ड, योर रिसर्च पर्सन इज रिक्वायर्ड। आपको पता है कि लाखों फिल्म हमारे इंडिया में बनती है, मगर उसमें रिसर्च के तौर पर बनने वाली फिल्में काफी कम होती है, ऑलमोस्ट होती ही नहीं, क्योंकि हमारे लोग रिसर्च को अभी भी उतना महत्व नहीं देते हैं जितना होना चाहिए। आपको पता है शेखर कपूर जैसे फिल्म मेकर, व्हाई दे आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली? बिकॉज ऑफ देयर वे ऑफ थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर रिसर्च एंड प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ दैट सब्जेक्ट। अगर उनका बैंडिट क्वीन आप सिनेमा देखते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे वाकई वो तो डॉक्यूमेंट्री रियल जगह पर जाके शूट किया है। तो आज उसमें जो कलाकार है, वो 94 में बनी थी फिल्म, उसमें से सारे जो एक्टर्स हैं, सारे कलाकार हैं, आज बड़े स्टार्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं। तो फिल्म मेकर के दृष्टि में, फिल्म डायरेक्टर की दृष्टि में, जब कलाकार का चयन होता है, कलाकार का जब सिलेक्शन होता है, तो वो एक हीरा, डायमंड मार्केट में हाउ द डायमंड मर्चेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड और फाइंड आउट दैट डायमंड, वैसे वो कलाकार का चयन करता है। सो रिसर्च your vision and everything is, it should be connected to the society. So फिल्म मेकिंग में अगर आप क्रिएटिव है, अगर आपको कुछ करना है, तो सबसे बड़ी बात है जो डर है कि यार ये मेरे पहचान के लोग क्या कहेंगे, मेरा, मैं कैमरा में ऐसे आऊंगी, मैं वैसे आऊंगी, या मैं ऐसे आऊंगा, या लोग क्या सोचेंगे। यू डोंट नो डियर कि कुछ कुछ ऐसे अनपढ़ गवार लोग हैं कि जिनको कुछ भी पता नहीं, मगर जो जैसे आता है वो बोलते हैं फोन पर, उसे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, और लाखों रुपया वो लोग कमाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट कि आपको आपके अंदर की जो लज्जा है, या आपके अंदर का जो हेजिटेशन है, वो आपको निकालना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आपको निर्माण करना है, तो आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई एक ऐसे विचार है, कोई स्ट्रांग विचार है, तो आप उस विषय से कभी भी आप क्लिक हो सकते हैं। तो वो शायद गाना हो आपका छोटा, अपने घर में गुनगुनाते हैं, तो कई बार आपको ऐसे लगता है कि अरे आपने जो गाया है वो कुछ अलग ढंग में है, शायद वो एक अच्छा एल्बम बन सकता है, अच्छा सॉन्ग बन सकता है। जरूर पता चले बाद में कि आपने कोई इस गाने का म्यूजिक डायरेक्शन किया। तो एक्टर, जब आप देखो, दुनिया में एवरीबॉडी इज एक्टर। अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर जो आंसर दे सकते हैं वो लोगों ने देना है, यस और नो, या हाँ बताना है। आप में से कितने लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं? कोई है कि जिसने अभी तक कभी झूठ नहीं बोला है? कोई है? ऐसा कोई माइकल नहीं है कि झूठ अरे नहीं वाह, बोला क्या है। बात, वाह वाह। इसका मतलब, मैं तो बहुत झूठ बोलता हूँ। सभी लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ बोलना जो है वो गॉड गिफ्ट है, इट्स अ नेचर्स गिफ्ट। अभी कैसे झूठ बोलते हैं, इसका मतलब है वहां पर हम अभिनय करते हैं, वाचिक अभिनय जिसे कहते हैं, बोलने का अभिनय। तो ये वाचिक में हम एक्टिंग में सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते हैं कि हम बोलते हैं अरे कहाँ पर हो भाई, हाँ मैं अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। या कई बार ऐसे झूठ बोलते हैं कि सामने वालों को पता नहीं चलता है। तो उस वक्त हमें अभिनय करना पड़ता है। छोटे बच्चे भी जैसे 2 साल का बच्चा होता है, वो भी आपको झूठ बोलता है।
इसका कारण क्या है कि नेचर ने हमें अपने सर्वाइवल के लिए दिया हुआ वो एक इम्पोर्टेंट ऐप है जो एक्टिंग का है, कि जिसमें हमें उस वक्त वैसे अभिनय करना ही पड़ता है, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं होंगे इस जीवन में। कि जैसे गिरगिट जो है वो अपना रंग क्यों बदलता है? अगर वो रंग नहीं बदलेगा तो उसकी शिकार होगी। अगर टाइगर है, उसके ऊपर स्ट्रिप है, अभी अब सारे लाइंस है, तो उसका कलर जो है वो ऐसे सैप येलो और ऐसे होता है ताकि घास में ना दिखे। हिरन के सींग जो होते हैं इट्स लाइक लकड़ी के खंबे हैं। तो अभिनय, वो अभिनय है, वो कैसे अभिनय है? तो उनका विजुअल एक्सप्रेशन के साथ अभिनय है। यानी बाय बिल्ट बाय इनबिल्ट जो ऐप है उसमें से एक इंपॉर्टेंट ऐप हमें दिया हुआ है भगवान ने, वो अभिनय का है। सिर्फ हम कितना अभिनय करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, जितना हजम हो जाए। और अगर कोई थोड़ा हजम होने से थोड़ा कोई ज्यादा बोलता है तो बोलता है अरे वो उस पर भरोसा मत रहेगा, बहुत फेंकते रहता है, अरे वो ऐसे फेंकता है या वो ऐसे बात करती है कि वो इट मीन्स व्हेन यू आर डूइंग ओवर एक्टिंग पीपल विल कैच। सो सिनेमा के बारे में एक्टर और एक्ट्रेसेस का इंपॉर्टेंट क्या है? तो आम लोग जो है, जो नॉर्मल लोग है, जो कॉमन मैन है, उनको सोसाइटी में सिर्फ कंसर्न होता है कि एक्टर और सिंगर्स, गाना किसने गाया है और वो रोल में कौन दिखता है। मगर उसके पीछे जो टेक्नीशियंस है, उनके उसके पीछे जो कलाकार है, जो कई सारा क्रू होता है। आपने अगर हॉलीवुड की फिल्म अगर देखते हैं कोई भी, तो एंड का आप क्रेडिट देखेंगे ना, तो 5 मिनट तो वो क्रेडिट चलते रहते हैं, इतने लोग उसके पीछे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये इन सारे लोगों के पीछे मेहनत होती है कि उसके बाद वो एक्टर शाइन हो जाता है। तो आज आपने जो जो आपने आपने सोचा है कि अरे आप एक्टिंग करेंगे तो कौन सोचेगा, क्या कैसे होगा और क्या, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आगे जाके आपका कोई भी एक सादा सिंपल यूट्यूब वीडियो लोगों को पसंद आ जाए और उसमें से आपको कोई डायरेक्टर कहे कि अरे आप मेरे फिल्म में आप रोल कीजिए। तो सी, आप 1980s के अगर फिल्में देखें, श्याम बेनेगल, जब्बार पटेल, या वो ऋषिकेश मुखर्जी, या गोविंद निल्हानी, उनकी जो फिल्में थे उसमें क्या होता, उनका काफी बजट कम रहता था एनएफडीसी और उसकी। तो उसमें जो नए एक्टर्स होते थे, एनएसडी पास आउट, एफटीआई पास आउट, स्ट्रगलर, वो नए एक्टर उस वक्त थे। मगर आज वो नसरुद्दीन शाह से लेके ओम पुरी तक या परेश रावल तक सारे बड़े स्टार्स हैं। क्योंकि लोगों की आदत क्या होती है कि स्टार कब बनता है, लोगों को देख देख के लोगों को आदत हो जाती है कि अरे ये अपना आदमी है। कि जैसे ये पॉलिटिशियंस लोग होते हैं ना, देखो वो कोई भी छोटी हो चीज हो होती है ना, उकडलंय, गरम कर फक्त. चहा झाला असेल तर पाठवा आम्हाला पण। तर एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस, नेता और अभिनेता, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? कोई बता सकेगा? अभी बोल सकते हैं आप, अगर कोई किसी को बोलना है तो। कैन एनीबडी टेल कि एक्टर और अभिनेता और नेता दोनों में क्या फर्क है या क्या काम ये है? वो चंद्रेश बोल रहा हूं मैं। दोनों हाँ में कॉमन ये है कि आपने जैसे बताया कि जो गॉड गिफ्ट है, झूठ बोलने की गॉड गिफ्ट, हाँ हाँ, उसको वो बार बार पब्लिक के सामने बखूबी निभाते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे कहा जाता है कि एक झूठ आप 100 बार बोलते रहो तो लोगों को वो सच लगने लगता है ना। ये जो बड़े स्टार्स होते हैं वो क्या तुम्हारे मेरे जैसे सिंपल लोग होते हैं, मगर उनको इतनी बार देखने के बाद, इतनी बार देखने के बाद, उनका जो हमारे हार्ड डिस्क में जो डेटा का साइज बनता है ना,
वो कई बड़ा टीवी तक बनता है, थाउजेंड्स ऑफ टीवी। तो उसके वजह से हमें लगता है कि ये बड़ा नेता है या बड़ा अभिनेता है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों भी एक्टर ही होते हैं, अभिनय ही करते हैं। नेता आपके सामने कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा, उसका जैकेट रहेगा, टोपी रहेगी, पगड़ी रहेगी, जो भी उसका जो कॉस्ट्यूम जिसे कहते हैं, उसके जो भाषण रहेंगे वो पूरे ऐसे डायलॉग रहेंगे, पंच डायलॉग रहेंगे। तो अभिनय जो है, एक्टिंग जो है, अभिनेता जो है, कि इसमें यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक जमाना था ऐसे कि अभिनेता बनने का जो चांस था वो गिने चुने लोगों को रहता था, मगर आज भी कोई भी एक्टर बन सकता है, प्रोवाइडेड दैट पर्सन शुड हैव अ कंसिस्टेंसी, दैट पर्सन शुड डेडिकेट फॉर दैट कॉज। अगर आप, सिंपल है कि 1 साल तक आपके चैनल पर आप कोई भी आपका वीडियो करके आप ब्रॉडकास्ट करते रहिए, 2 साल के बाद पीपल विल, लाखों लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि इट्स अबाउट एक्वेंटेंस। देखो, नेता और अभिनेता में फर्क क्या है कि अभिनेता या अभिनेत्री सीधा हमारे दिल में जाती है। अभी इंट्रोडक्शन में किसी ने कोई लाइन साहब थे तो उन्होंने कहा कि हर एक के जीवन की ऐसे कथा है, इसके लिए ये वेबिनार इंपॉर्टेंट है। तो why cinema is important in the life? Because it talks about your heart, it talks about your love, it talks about your romance, it talks about your kundalini shakti. So what is a kundalini shakti? कुंडलिनी शक्ति इज कि जैसे पुरुष सूक्त है, तो पुरुष सूक्त में क्या लिखा हुआ है कि पुरुष का मतलब है कि मेल एंड फीमेल, कि मेल इज वन काउंटर पार्ट एंड फीमेल इज अदर काउंटर पार्ट, दोनों को मिला के पुरुष बनता है। पुरुष यानी आत्मा, परमात्मा। या तो जब हम सोचते हैं रियल लाइफ में, तो हमारा एक रोल मॉडल होता है, और वो रोल मॉडल क्या होता है कि क्या किसी को बाबा आमटे या संत तुकाराम या ऐसे कोई होने को कोई सोचता नहीं। एवरीबडी थिंक्स कि आई लुक लाइक अमिताभ, आई लुक लाइक सलमान, आई लुक लाइक ऐश्वर्या, आई लुक लाइक दीपिका। तो वो एक रोल मॉडल होता है, और ये अभी से नहीं है, हजारों सालों से लोगों का रोल मॉडल जो है वो हमेशा नट या नटी रहा हुआ है। इसीलिए नटराज को हमने, शंकर को नटराज के रूप में हमने देखा। हजारों सालों से हमेशा राजा को नट या एक्टर या एक्ट्रेसेस के साथ टाइम पास करना हमेशा अच्छा लगता था। आज भी आप पेज 3 के पार्टी में देखेंगे तो ये एक्टर पॉलिटिशियंस लोगों के साथ कौन रहता है? रेयरली बिजनेसमैन होते हैं सिर्फ, बाकी अदरवाइज दे आर एंजॉयिंग देयर कंपनी विद फिल्म एक्टर्स। So see, try to understand when I am telling you पुरुष सूक्त, इसके पीछे डीप मीनिंग है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू थिंक अबाउट अ लाइफ पार्टनर, जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे दिल का टुकड़ा है। ऐसे कोई है, फिर वो मेल है, फीमेल है, व्हाटएवर। तो ऐसे इसके बारे में हम सोचते रहते हैं कंटिन्यूअस। कुछ लोग दिखाते नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, बट हिडनली हम रात को जो गाने, रोमांटिक गाने सुनते हैं, उसका कारण यही है कि सिनेमा हमें हमारे अंदर के जो तत्व को, हमारे अंदर के जो मेल काउंटर पार्ट या फीमेल काउंटर पार्ट को एक्टिवेट करता है, टू फाइंड आउट द नेक्स्ट काउंटर पार्ट दैट इज अ मेल और अ फीमेल, जिसे हम मिस करते हैं। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है। तो इस टाइप के गाने लोगों को क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हम समाज में एक संस्कारों के साथ जीते हैं, और ये जो संस्कार है वो पहले माइथोलॉजी से, संस्कार जो है वो पहले अध्यात्म से, वो पौराणिक कथा से, कीर्तन से, भारुड़ से, पूजा अर्चा से होते थे, मगर आज उसका इम्पोर्टेंस हमने खत्म कर दिया है। आज हमारा प्राइम टाइम 90% लोगों का टेलीविजन सीरियल देखने में जाता है, और टेलीविजन सीरियल से हमारे घर के अंदर संस्कार होते हैं। तो सिनेमा में जब हम राइटर, डायलॉग राइटर, एक्टर्स और इस टाइप के लोग
हम देखते हैं, क्योंकि उनका एक अहम इम्पोर्टेंस रोल है। तो वैसे ही टेक्निकल जो लोग हैं, कि जैसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, सिनेमाटोग्राफर है, ऑडियोग्राफर है, एडिटर है, प्रोडक्शन डिजाइनर है, आर्ट डायरेक्टर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, मेकअप है, प्रोडक्शन मैनेजर है। तो सी दीज आर द पीपल, वो दीज आर द इम्पोर्टेंट पीपल कि जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। कि जैसे अभी पूरे बम्बई में आप देखते होंगे कि पूरा मेट्रो के लिए कहीं पर भी खोद के रखा है, काफी ट्रैफिक होता है, काफी लोगों की मेहनत दिक्कतें होती है। मगर ये जब मेट्रो प्रॉपर शुरू हो जाएगी तो सब लाइफ स्मूथ हो जाएगा। मगर अभी उसके पीछे जो अभी लोग काम कर रहे हैं, उनकी कठिनाइयां हम समझ नहीं सकते हैं, हम देख नहीं सकते। वैसे ही ये जब टेक्निकल क्रू की जब हम बात करते हैं, तो इनका जो मेहनत है, इनकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी बढ़ गई है। अभी सम लियो और सम पर्सन इज देयर हु इज स्टडीड बीएम या मास मीडिया का कोई स्टूडेंट मैंने सुना है। तो Yes. मास मीडिया, यस, तो मास मीडिया में आप देखेंगे कि nowadays every person is somehow connected to the mass media. Every person tries to broadcast his or her news, daily news। फिर वो अपने दोस्तों में हो, अपने परिवार में हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो अपना व्हाट्सएप स्टेटस, अपने फैमिली का फंक्शन, अपना कोई अचीवमेंट, तो कुछ लोग टेक्स्ट में सेंड करते, कुछ लोग उसका वीडियो बनाते, कुछ लोग उसका पर्टिकुलर फाइल बनाते। इट मीन्स जो काम मास मीडिया का, जो कोई जर्नलिस्ट लोग थे, टिपिकल लोगों का काम था, आज हर कोई वो कर रहा है। यानी एक जमाना ऐसे था कि वो गांव के बाहर वो पेड़ के नीचे बैठ के चौराहे पे बातें करना, या किटी पार्टीज में बातें करना, या फैमिली फंक्शन में बातें करना, वो नहीं। अभी आज 24 आवर्स हम सोशल मीडिया पर रहते हैं। और ये सोशल मीडिया आपके लिए कोई फ्री काम नहीं कर रहा है। They are making millions and trillions of dollars with your social relations। कई सारे फिल्म मेकर्स है, कई सारे फेसबुक यूट्यूबर्स है, वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे टॉपिक डालकर कि जो लोगों के इंटरेस्ट की बात है। तो अभी इसमें हमें क्या समझना है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये फिल्म मेकिंग ऐसे एरिया है कि जिसमें you actually don't need to go and take any licensing, any permissions, any, you can start your own business, your own production, your own broadcasting। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग अब इसके लिए अभी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें लोकेशन, साउंड स्टूडियो, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये जो सारी चीजें हैं, अभी फिल्म रॉ स्टॉक वगैरह सारी चीजें आउट ये हो गई। अभी ये जो पहले करोड़ों रुपया का खर्चा होता था, वो सारी चीजें आप आपके अवेलेबल अवेलेबल सिचुएशंस में आप काम कर सकते हैं। सी फॉर कंपैरिजन we'll try to understand कि how film making is very, what you can say, economical और reasonable। कि जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी, तो आप देखेंगे कि ये 35 mm से शुरू हुई थी। अभी ये फिल्म फॉर्मेट है, ये टोटली आउटडेटेड हो गया, बंद हो गया। ये कैमरा होता था एंड इट वाज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग। क्योंकि आज आपके मोबाइल कैमरा में 4K आता है, इसका जो रेजोल्यूशन होता है इट इज अ 4K। और इसका जो 4 मिनट का जो डिब्बा होता था, फॉर 4 मिनट, उसके लिए आपको 16,000 रुपया देने पड़ते थे। और वो इट वॉज वन टाइम यूज। इसके लिए हमेशा आप देखते रहेंगे डायरेक्टर हमेशा चिल्लाते हुए, गालियां देते हुए वो सेट पर काम करता था, बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव मीडिया। Why cinema was used to make on this thing? Because सारे जो फिल्म थिएटर्स थे, ये सारे फिल्म थिएटर्स 35 mm प्रोजेक्शन के लिए बने थे। सो मेनली सारे जो फिल्में बनती थी 35 mm में बनती थी, वो अभी टोटली बंद है। सिर्फ शोले था जो 70 mm में बना था।
तो जिस फॉर्मेट में आप सिलेक्ट करते थे वो बजट के अनुसार इक्विपमेंट होती थी कि जिसमें कैमरा है, इक्विपमेंट है, सारी चीजें हैं। तो इसमें रेजोल्यूशन जो है कि आपको याद है पहले शादी का वीडियो होता था 1980s में, 84 85 में, तो उसका जो रेजोल्यूशन था वो ओनली 240 लाइंस था। फिर टेलीविजन सीरियल्स आती थी, उसका रेजोल्यूशन 640 लाइंस था। और वो जो मीडिया के लोग कैमरा लेकर घूमते हैं उसका जो रेजोल्यूशन है 540 लाइंस। एंड नाउ डेज घर में टीवी, कैमरा, वो सारा 2K मतलब 2000 से लेके 4000, ये से लेके 8000 तक के अभी कैमरास अवेलेबल है। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू ब्रॉडकास्ट योर फिल्म शुड बी इन HD फॉर्मेट, क्योंकि उसके कई सारे कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे आजकल आप देखेंगे कि OTT जो प्लेटफॉर्म है कि जैसे अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है कि जिसमें लोग ऐसा कंटेंट ले रहे हैं कि जो अलग है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट pornographical films they are selling, but apart from that thing there are n numbers of OTT platforms कि जहां पर अच्छे कंसेप्ट्स का भी दुनिया भर में मार्केट है। आपको पता है कि हॉलीवुड के सारे स्टूडियोज इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ क्यों टाइप कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया इज सच अ बिग मार्केट फॉर फिल्म्स। सो पहले ऐसे होता था कि इडली डोसा सेल करने वाले साउथ इंडियंस होते थे, पंजाबी डिश सेल करने वाले पंजाबीज होते थे। फिल्म प्रोडक्शन ने सांभळवा तो लाइव ने लिंक लाइव। यस ना, तो अभी अभी मराठी आदमी तमिलनाडु में जाके वहां पे होटल डाल के मसाला डोसा सेल कर सकता है, तो उसके लिए तमिल होना जरूरी नहीं है। तो वैसे हॉलीवुड के लोग इंडिया में आके इंडियन सब्जेक्ट, इंडियन कंटेंट, इंडियन लोगों को हायर करके फिल्में बना रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ ह्यूज मनी। जैसे अवतार जैसी फिल्म जो बनी थी उसका 90% प्रोडक्शन जो है, एनिमेशन है, वो इंडियन लोगों ने किया हुआ है। सो हमारे लोग काफी सस्ते इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर काफी टेक्नीशियंस है, काफी मतलब इंटरनेशनल लेवल का सारा रिसोर्स अवेलेबल है। सिर्फ उसमें अगर ढंग से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कि जैसे आपको पता है कि रिलायंस के अंबानी जो है वो दे हैव स्टार्टेड प्रोडक्शन। मैंने पर्सनली रिलायंस के कई सारे एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया है। वो HTA, मुद्रा, रिलायंस, इनके जो क्रिएटिव हेड्स होते हैं प्रोडक्शन हाउसेस के, उनको जब मैं ट्रेनिंग देता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनका कमर्शियल जो विजन है वो कितना ब्रॉडन हो गया। क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक चैनल का एक क्रिएटिव हेड होता है। सीरियल बनती है तो उसका एक क्रिएटिव हेड होता है। तो when I'm giving a training to these people, so they don't know anything, they just try to, what you can say, torture these serial wala people, and they even they are least bother about कि वो कंटेंट सामाजिक है, समाज के हित में है नहीं। तो सी वो आगे की बात है। अभी यहाँ पर हमें क्या समझना है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो सबसे पहले है, एक गुड न्यूज है कि ये जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो 10 साल पहले अगर 10 करोड़ में फिल्म बनती थी, वो फिल्म आज आप 50 लाख में बना सकते हैं। जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले आपको पता था ना कि वो ये टेरिटरी में फिल्म सेल हो गई, MP से बेरार, साउथ और नॉर्थ, और ऐसे 16 टेरिटरीज होती थी। ये सारे के सारे 16 टेरिटरीज में अगर फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होना होता तो उसके प्रिंट निकालने को, जैसे ये जो रोल है इसके, इसका कॉस्ट 250 करोड़ रुपया कॉस्ट होता था। सिर्फ शोले एक ऐसे फिल्म थी कि जिसके 5000 प्रिंट उस वक्त निकले थे। तो इसीलिए आज वो 250 करोड़ का जो खर्चा है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सिर्फ 50 लाख हो गया है, बिकॉज डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अगर आप फिल्म बनाते हैं, फीचर फिल्म, तो यू कैन गेट राइट्स, मतलब जिससे आपको पैसा मिलता है। ऐसे 29 अलग अलग प्रकार के राइट्स है जिससे आपका पैसा, रेवेन्यू जनरेट होता है।
तो आप वो 10 मिनट की फिल्म बनाए या 1 घंटे की फिल्म बनाए या 2 घंटे की फिल्म बनाए या पूरी वेब सीरीज बनाए, मगर आपको ऐसे देखना है कि जैसे किसान अपने खेती को देखता है, वो खेती लगा के छोड़ता नहीं, उसे नर्चर करता है। सो व्हेन डियर फ्रेंड्स कि अपने पास वक्त कम है, तो इसमें व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज, एक जमाने में इसका नॉलेज भी काफी आसानी से नहीं मिलता था, आज जितने आसानी से हम बात करते हैं। सो नॉलेज भी आसानी से अभी मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपकी वैसे इच्छा होनी चाहिए। तो जिस तरह से आज थिएटर्स का बिजनेस है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, यूट्यूब चैनल का बिजनेस है, फेसबुक का बिजनेस है, ऐसे 2024 में इन 2024 अभी जो है उसके 5000 टाइम्स बिजनेस बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है, और उसके फिल्मों की लोगों को जरूरत रहेगी। तो मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि उसके लिए आपके पास करोड़ों रुपया होनी चाहिए। उसके लिए व्हाट यू थिंक इज यू नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट द वर्क विद अ कोऑपरेटिव बेसिस। अगर आप 4 एक्टर है तो उसमें कोई डायरेक्टर बन सकता है या किसी को हायर कर सकते हैं, या यू कैन स्टार्ट योर प्रोडक्शन विद अ लिटिल बजट एंड ग्रेजुअली यू कैन डेवलप इट। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको ये तय करना है, और यू नीड टू थिंक दैट यू आर प्रोफेशनल एक्टर। आपको पता आहे दादा कोंडके कितवी शिकले होते? फक्त 4थी शिकलेले होते. पण त्या माणसाने ज्या प्रकारच्या फिल्म्स बनवल्या, ज्या प्रकारे फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये त्याने नाव कमावलं, त्याला तोड नाही. तो सत्यजित रे, दादा कोंडके, आता संजय बन्साली. अभी संजय बन्साली या डेविड धवन या अभी नागराज मंजुळे, ये अलग-अलग एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने है. ये लोग क्या कोई बड़े फिल्म खानदान से नहीं थे, मतलब कहीं ना कहीं पे इन लोगों ने शुरुआत की थी. अभी देखो, हम ऐसे तो नहीं आपको कह सकते हैं कि आपको किस विषय पर फिल्म बनानी है. मे बी दैट कैन बी एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट, इट कैन बी अ लव स्टोरी, इट कैन बी माइथोलॉजिकल स्टोरी, इट कैन बी a documentary series, it can be a web series. तो जैसे मैंने शुरुआती तौर पर कहा था कि डॉक्यूमेंट्री सीरीज आपको पता नहीं है कि ये इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के लोग इंडिया में आते हैं, वो साउथ से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सिर्फ ऑटो में घूमते हैं, ऑटो रिक्शा में, उसमें शूट करते हैं और यूरोप अमेरिका में जाके वही फुटेज सेल करके करोड़ों रुपया कमाते हैं. How they earn? Because they go through particular process. So see, हमारे पास समय का लिमिटेशन है, तो अपॉर्चुनिटीज कई सारी है, नॉलेज कई सारा है. अभी इसमें क्या है कि यू नीड टू टेक सम लीडरशिप. अभी किसकी लीडरशिप हो, कहाँ से हो, आपके ऊपर है. मतलब इट्स फैंटास्टिक है कि आपका लायंस क्लब जो है कि उसमें इतने मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विजनरी लोग हैं. तो इफ समबडी टेक्स एन इनिशिएटिव कि जिसमें देखो, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इसमें लियो क्लब भी है, लायंस भी है, लायनेस क्लब भी है, कि जिसमें फ्रैगमेशन है एंड जिसमें यू कैन प्लान योर फिल्म. क्योंकि देखो इसके आगे जाके, मतलब चैरिटी की बात मैं कर रहा हूँ कि चैरिटी में आई हैव स्पेंड 20 years ऑफ माई लाइफ. I have worked for one NGO and for that we have gotten national award, राष्ट्रपति पुरस्कार लेने के लिए मैं स्वयं गया हूँ. तो उसमें what I have realized कि लोगों को सिर्फ चैरिटी से काम नहीं चलेगा, उनको सिर्फ किताबें देने से, उनको खाना खिलाने से, उनको कपड़ा खिलाने से काम नहीं बनेगा जब तक हम उनके विचारों को जागरूक नहीं करते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर लायंस क्लब, आपके जैसे लोग अगर इनिशिएटिव लेते कि कोई सोशल मैसेजेस वाली फिल्म बनाइए, सोशल मैसेजेस वाली कमर्शियल फिल्म बनाइए, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सोशल, यू कैन अर्न आल्सो, यू कैन मेक अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आउट ऑफ दैट थिंग. क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए
कि आज हमें हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर का जो हमें अभिमान क्यों है कि हमें हमारे जो मंदिर है, हमारे गुफाएं हैं, हमारे केव्स हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक जमाने में जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने वो स्पॉन्सर किए थे। कि जैसे आज आपके क्लब के लोग सोशल ये कर रहे हैं, सो आगे जाके सिनेमा में अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आता है, अगर सोशल लेवल पर फिल्में बनती है, अभी कई सारी एनजीओ, कई सारे लोगों ने ये काम शुरू कर दिया पिछले 20 सालों में। कि मैंने खुद कुछ एनजीओ का ट्रेनिंग लिया है कि जिसमें हमने उनको बताया है कि छोटी फिल्म से लेके हम किसानों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, हम मजदूरों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, हम मेड सर्वेंट को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग दिस थिंग कि जैसे बांग्लादेश के वो जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर जब उन्हें नोबेल मिला है, तो उनकी कई सारी छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं। आप ईरान जैसे कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ के माजिद माजिद है, या यूरोप में कुछ फिल्म मेकर्स है कि दे आर डेडिकेटेड सिंपली ऑन मेकिंग अ स्मॉल फिल्म्स फॉर अ सोशल चेंज। हमारे ऊपर है कि जैसे कृष्ण ने कहा कि जहां तक मेरा हाथ पहुंचता है वो काम मैं जरूर करूंगा, वैसे आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने आप को किस रोल मॉडल में देखते हैं। क्योंकि हमारा जो समाज के सामने जो एक फेस होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर फेस होता है, वो क्रिएट करना पड़ता है हमें। हमारे नाम क्रिएट करना मतलब हमारे कुछ गुणों से, तो मे बी दैट इज एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर और एज अ एक्टर और वट एवर। And for that thing we need to start a process। तो प्रोसेस में कैसे है कि हमें ये जो सक्सेस है वो ऑल ऑफ सडन सक्सेस नहीं मिलेगा जब तक हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं। तो जैसे टेक्निकल भी जब आज आप देखेंगे कि हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी आपके जेब में है, आपके हाथ में है, और प्रोफेशनल वे से उसे आप इस्तेमाल करते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। तो जब हम जो सिचुएशन हम फेस करने वाले हैं, तो वो रियलिटी मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो या फीचर फिल्म हो या लोकेशंस प्रॉब्लम हो या टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर आंसर क्या है? तो आपको कैमरा लेकर आपको फील्ड में जाना है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि अरे वी आर बाथरूम सिंगर्स, वी आर वी कैन कंपोज, वी कैन डांस, वी कैन एक्ट। तो इसमें हमें ये समझना है कि अगर दुनिया माने ना माने, अगर हमारे अंदर वो टैलेंट है, अगर हमारे अंदर वो हुनर है, तो हमें बिना किसी हेजिटेशन के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, उसे शूट करना है, उसे अपलोड करना है, उसके रिजल्ट्स देखने हैं। आता ते मराठीमध्ये एक गाणं होतं की गणपत वाणी बिडी पिताना म्हणायचा या जागेवर मी बांधीन माडी। तो हम ऐसे ख्याली पुलाव सोचते रहेंगे तो दुनिया आगे किधर के किधर निकल जाएगी। एंड इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट स्टफ, इट्स ओनली थिंग इज कि हमें कहीं ना कहीं पर शुरुआत करनी होगी। एंड ऑफ कोर्स कि जैसे हर एक आर्ट का एक साइंस होता है, हर एक आर्ट का एक प्रोसेस होता है, हर एक कला की एक साधना होती है, वैसे हमें ये कहीं ना कहीं पर इसकी साधना करनी होगी, इसे समझना होगा, या कोई प्रोजेक्ट शुरू करके हम उस प्रोजेक्ट पर किसी को कंसल्टेंट के तौर पर हमें टेक्निकली उसे समझना होगा। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है समृद्धि पूरे करके, उसने कोर्स करने के बाद
मला आई व्हायचं एक फिल्म बनाई और उसके बाद प्रकाश बाबा आमटे फिल्म बनाई। तो जब उसके साथ वो श्वास के और एक राजन तो वो एक प्रोड्यूसर थे, वो दोनों ने साथ में कोर्स किया था। तो ऐसे कई सारे लोग हैं कि मुझे पर्सनली बताते हैं कि जब तक बेसिक चीज़ें होती है, उसका जब तक हमें प्रिंसिपल नहीं समझता है, उसका तत्व नहीं समझता है, तब तक कितना करोड़ों पैसा खर्च के भी उसका कोई मतलब नहीं होता है। सी कि आज मतलब 2002 से साइंस इंडिया फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर मैं ये यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कंडक्ट कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे ये देखा है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है इंडिया के हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेरे 2 से 3 स्टूडेंट है कि जो डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, फिल्म मेकर्स है, कि जजेस है, बिजनेसमैन है, दे आर मेकिंग अ पर्टिकुलर फिल्म्स ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। हमारी एक फ्रेंड आई थी, एक डॉक्टर आई थी अमेरिका से, कि उसके साथ मैं घूमा था वहाँ पर अजंता वेरुला और वहाँ पे। तो उसे जब मैं डॉक्यूमेंट्री पढ़ा रहा था, तो शी टोल्ड मी दैट इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट इज पुअरली मैनेज कंट्री। तो देखिए कि बाहर से आके लोग यहाँ पर यहाँ के टॉपिक्स को सिलेक्ट करके दे आर मेकिंग अ मनी। स्लम डॉग मिलियनर इज व्हाट I know, I have attended few schedule of Slumdog Millionaire। तो Slumdog Millionaire को उन्होंने कब रिलीज किया? जब उसको एकेडमी अवार्ड मिला। सो इट्स अ कंस्पायरेंसी, इट्स अ बिजनेस प्लान। एकेडमी अवार्ड जो मिलता है वो लंदन में मिलता है। तो एकेडमी में अवार्ड मिला, इसका मतलब है कि आगे उसको ऑस्कर भी मिलना है, और ऑस्कर मिलने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई। एंड उसके बाद उन्होंने 4-5 साल के बाद इंडिया में फिल्म वो रिलीज की। अभी वो सब्जेक्ट तो नया नहीं था, की जैसे वो राजा परांजपेने ते त्याचं गाणं होतं ते, तुला पाहते रे मी तुला पाहते, असा तो एक आंधळ्याचा पिक्चर होता, त्याच्यामध्ये तीच सेम स्टोरी होती। ती स्टोरी त्यांनी 20 वर्षांनी, 25 वर्षांनी, 50 वर्षांनी बनवली, आणि जगभरामध्ये इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, कि अभी भी इंडिया मतलब ऐसे है। वो जब डॉक्टर आए थे मेरे पास, तो वो फिल्म देखने के बाद उसके फैमिली के लोग बोले, ओ माय गॉड, यू आर गोइंग टू सच अ वर्स्ट कंट्री, हाउ यू कैन सर्वाइव देयर, वी आर वरीड। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं, कि जो हिंदुस्तान को आज भी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिक्चरायझेशन किया कि ये जादू टोना साप गारुडी आणि यांचा देश आहे, अभी भी लोग वैसे ही दिखाते हैं, क्योंकि पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस थिंग्स। मगर ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स है, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, सुंदर सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, इट्स अ रिचेस्ट कल्चर। फिर वो विजुअली स्टनिंग है, वो ओरली स्टनिंग है, वो फूड, म्यूजिक, एवरीथिंग इज देयर। आज आप हम एक 25-30 लोग साथ में हैं, तो इसमें कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई साउथ इंडियन है, कोई हर एक का अपना कल्चरल टेस्ट है, कल्चरल सब्जेक्ट है। सो व्हाट आई फील कि हमें बीच बीच में ऐसे मिलते रहना चाहिए, क्योंकि unless we will not express ourselves, nobody will try to understand what's happening inside your mind। सो मुझे लगता है दिलीप जी कि ये जो इनिशिएशन आपने लिया है, आपके क्लब ने लिया है, तो इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे एक्टिविटीज होनी चाहिए कि जिसमें जो पोटेंशियल कलाकार है, जिसको कुछ सहायता की जरूरत है, जिसको कुछ, सो समहाउ वी कैन हेल्प देम। क्योंकि मेरे अपने 15,000 स्टूडेंट है, हिंदुस्तान वर्ल्ड के हर कोने में है, तो कहीं से भी आपको वो रिसोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली काफी बड़ा सब्जेक्ट है। अभी इसके आगे आई विल लाइक टू आंसर सम क्वेश्चंस और सम थिंग्स, कि जो आपको लगता है कि आपकी ये स्पेसिफिक क्वेरी है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए। तो दिलीप जी, इफ यू डोंट माइंड, आई विल लाइक टू आंसर सम क्वेश्चंस। Yeah, yeah. Please, my screen is open for questions and answers. Those who want to
ask question, they may do so. Sir, Can I would like to ask one question. Yes. If there is any some student Uh-huh. who is interested in acting Uh-huh. and who wants to know more about the subject, तो आपके पास मतलब how he should go about it? उसके लिए कोई और कोर्स करना जरूरी है या what is the yes, yes. procedure for that? ये देखो क्या है कि एक्टर के लिए है, जैसे कोई भी एक साधना होती है, तो अगर कोई गुरु के इसे जाता है तो इट वर्क्स। तो कई सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कई सारे फिल्म इंस्टीट्यूट्स होते हैं कि जहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, कई सारे थिएटर्स के ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप को ज्वाइन करना है, या आप अपना आपके लायंस क्लब का एक ऐसे कला मंच का एक ग्रुप शुरू कीजिए कि जिसमें यू कैन इनवाइट पीपल टू टीच दिस Okay. ना। तो Can I ask a question? एक यस सर, may I know your good name? Yeah, Srinivasan here. Yes sir. Yeah, I want to conduct a workshop हाँ, of this direction, production, and everything like Anupam cares. okay. So, how to go about it? And this will become a basic ground for preparing, making a social film. Yeah. तो see, इसमें कैसे है कि when I'm conducting film workshops, so I'm giving a consultancy to start these kind of workshops or training in these things, क्योंकि अनुपम खेर के जो फैकल्टीज है वो ऑफिशियली मेरे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, विस्लिंग वुड्स के फैकल्टीज आते हैं, जीमा के आते हैं, कई सारे फिल्म इंस्टीट्यूट उनको स्पॉन्सर करता है मेरे यहाँ पर आने के लिए। सो इफ यू वुड लाइक टू स्टार्ट सच अ वर्कशॉप फॉर दिस थिंग्स, so Saints India Foundation with the permission of Lions Club and this thing, we can definitely will guide you. Can you give your telephone number or mobile number in the chat so that I can get in touch with you? Yes, sure. लिख लीजिए 976. 1 minute. Everybody who would like to get in touch with me, I'm sharing my number. Yeah, go ahead, sir. Yes, 976. Yeah. 9797. Sorry, 976. Yeah. 9595. 9595 860. 860. Yeah. And your full name, sir? Bapu Sarvagod. Okay, fine. So, I got it. दिस इज चंद्रेश हियर। एक्चुअली मेरा एक कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक मेमोरी है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ विथ योर परमिशन बापू। जरूर। कि आज से 3.5 साल पहले मैं 4 दिन के लिए बम्बई में वो मेट्रो थिएटर के पास आपके यहाँ पे कोर्स करने आया था स्क्रीन राइटिंग का। अच्छा, आपका नाम? तो मेरा नाम चंद्रेश ठाकर। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली मैं पोएट था, तो आपके यहाँ पे आया था। एंड ये मुझे सबके साथ शेयर करने का है कि जब भी हमने ये कोर्स किया था, जैसे बापू सर्वगुड ने अभी शॉर्ट में बताया, लेकिन एक राइटर का सामाजिक कर्तव्य क्या है और लिखने का मीनिंग क्या है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जितनी अच्छी तरह से बापू सर्वगुड ने समझाया था। मीन्स वो स्क्रीन प्ले के वर्कशॉप में 4 दिन के वर्कशॉप में 3 दिन हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे थे, और चौथे दिन बापू ने 2 घंटे में हमको स्क्रीन प्ले क्या होता है टेक्निक सिखाया था। बट जो नॉलेज जो हमको मिला है वहां से, इट वाज सो अमेजिंग। एंड आफ्टर दैट आई हैड पब्लिश्ड माय 2 बुक्स ऑन अमेज़न, दे आर अवेलेबल। एक आजाद लम्हे मेरे पोएम बुक है, और एक नया कॉन्सेप्ट लिखा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। अरे वाह, क्या बात। तो अब बाकी मेरे पास बहुत, और दूसरा शेयर मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत लिरिक्स है और बहुत सारे स्क्रीन प्ले है। इफ एनीबडी वुड लाइक टू मेक एनी कॉन्सेप्ट और मूवी, या किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए, आई कैन डेफिनेटली शेयर विद देम, एंड आई डोंट नीड एनी क्रेडिट्स फॉर दैट। अरे नहीं, अच्छा वो आपने किया, क्योंकि कई सारे प्रोड्यूसर्स मुझे पूछते हैं अच्छे कंसेप्ट के लिए, because people are looking for good concept and good stories. तो टच में रहिएगा। डेफिनेटली सर। और आपका जो बेस्ट चीज है, जो मैंने आईने के सामने इतनी बार प्रैक्टिस किया था, कि हाउ टू पिच योर स्टोरी इन 3 minutes. Yes. Oh, great. Sir, I've read your book, sir. I've read your book, Project Management book.
Project Management and Spirituality. It's on Amazon. You can type my name, Chandresh No, Takar. I've got that book. Excellent. Oh, okay. Wow. Thank you so much. That's great, great. Let me say some few words. Uh-huh. Those who are interested in furthering their knowledge in this production, screenplay, direction, and acting, Lions Club of Mumbai Majestic, Mulund Majestic, will give you helping hand in arranging those workshops, and Bapu Sarvagod will be chief mentor for us, and we can do also, as he has suggested, like-minded people can form a art section of Lions Club and can further it by participating in that workshop. Secondly, I would like to also inform you that we are planning to have a documentary on Lion L.J. Tawari as a district governor designate. Once his permission is given, then we can have our team who can produce this film. And those who are interested in this basic first project, they may join us, and we can learn a lot of things in that project. So please do not hesitate to connect with our Lions Club. My mobile number is 98211 44080. 98211. 98211 Yeah. 44080. 482. Yeah, 080. 98211 44080. And my email ID is DDA architect @ Sir, please repeat phone number. 98211 98211 44080. 080. What we are doing, what my plan is to have a workshop and then create a short film. And that first short film will be of L.J. Tawari sir. If he gives permission, we would like to shoot him in various locations, make a story, make a story, make a dialogue, everything we will do it, and we will launch it at the time of our installation ceremony of L.J. Tawari. So if this concept is acceptable to you, then we can take an initiative and do something so that we can learn. Because I can definitely know we 30 people are very much interested in doing something, furthering our knowledge. So we can do it. Thanks. Thank you so much. पर्सनली मेरा एक सबको एक ऑफर है, और वी कैन आई एम जस्ट गिविंग माय अपील कि करंटली आई एम मेकिंग फॉर वन ऑफ आवर फ्रेंड 100 शॉर्ट फिल्म्स ऑन सोशल मैसेजेस. अभी उसी में मैं बिजी हूँ. तो इफ somebody would like to perform acting or would like to assist or would like to share their locations for shooting or want to assist with me, वेलकम. मैंने मेरा नंबर शेयर किया है आपको. जैसे आप व्हाट्सएप पे या इस पे टच में रहिए. हाँ, तो सी इट्स नॉट जस्ट हे कोरडा डिस्कशन नाही आहे याच्यामध्ये. ऍक्च्युअली व्हॉट आय फील की सम फ्रूटफुल थिंग शुड बी देयर ना. क्योंकि सर जरा नंबर मिळेल का परत एकदा सांगतो मी. 976 9595 886. Sorry, 886. Sorry. 860. 860. हाँ. 9. हाँ. आणि सर प्लीज रिपीट नंबर परत एकदा सांगतो. 976 911 सॉरी 976. 976
9595 9595 5958 ना? हाँ 860 860 सर 595860. हाँ Sir, Hello. I have put your number in the chat box. yes thank you Hello. Anybody can refer to that. हेलो बापू, हाँ बोलिए मैं कांतिलाल गड़ा बोल रहा हूँ कुर्ला क्लब से। नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे ये आपका कंपनी नाम है कुछ के? सेंस इंडिया फाउंडेशन। सॉरी, सेंस जैसे नॉनसेंस में बोलते हैं ना। हाँ सेंस इंडिया फाउंडेशन। ओके, सेंस इंडिया फाउंडेशन। तो मेरा जो वेबसाइट है that is www.senseindia.net. सेंस SENSE। हाँ ACNSE इंडिया सिंगल वर्ड है .net. उस वेबसाइट पर हाँ सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके थैंक यू। हाँ और एक गुड न्यूज है कि इन अ मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ दिस दिसंबर और इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम ओशिवरा में अपना एक बड़ा स्टूडियो है, वहां पे 1-2 दिन का फिल्म ओरिएंटेशन वर्कशॉप हम करने वाले हैं, जिसमें फिजिकल वहां पे प्रेजेंस होगा, क्योंकि 100-150 लोग बैठ सकते हैं। इस टाइप का वो प्रोफेशनल स्टूडियो है जहाँ पे अभी मेरा प्रोडक्शन चल रहा है। तो वहां पर इंटरेस्टेड उस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। आई विल शेयर यू डिटेल्स लेटर ऑन। ओके तो मैं आपको हाई कर दूंगा, आप डिटेल दीजिएगा। यस श्योर। ओके तो बापू आपकी होली बास्टर्ड रिलीज हो गई क्या? हाँ देखो, होली बास्टर्ड जो है वो सोशल और थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और लंदन में रिलीज हुआ था और यहाँ पर कुछ इसमें कुछ समय के बाद रिलीज करने का प्लान है। कुछ OTT प्लेटफॉर्म के साथ मेरी बात चल रही है और करंटली नमस्कार। हेलो हाँ बोलो। हेलो नमिता जी, वेलकम। थैंक यू हेलो लिंक बनवतो ना, करू देगा तुम्हाला। हेलो हाँ बोला। चंद्रेश भाई नंबर शेयर करेंगे आपका? हाँ 9769। हेलो सर, हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते, हम लोग बाद में आपको टाइम देंगे। अभी आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस वॉइस गुरु विलणकर जी and Deepak Vilandkar ji to say a few words for this participant. Deepak Vilandkar ji. Deepak ji, are you on screen? Yes, नमस्ते। नमस्ते। सभी लाइन मेंबर्स को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अभी मैंने बापूजी के विचार सुने और बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन उन्होंने किया है। नाउ माय टॉपिक इज अबाउट वॉइस ट्रेनिंग। जो बातें अभी बापू साहब ने बोली है फिल्म बनाने के बारे में, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है, वो होता है आवाज़। क्योंकि आपकी अगर आवाज़ हो तो आप फिल्म में काम भी करोगे तो आपके नाम पे होगा। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो एक्टिंग करता था एक बड़े सीरियल में, और हुआ ये कि जब उसके सीरियल का एपिसोड था तो सब लोगों को उसने फ़ोन करके बताया कि मेरा एपिसोड है, ज़रूर देख लेना वगैरह वगैरह। तो सब लोगों ने देखा और फिर बाद में बोला, यार तुमने एक्टिंग तो की है लेकिन आवाज़ तेरी नहीं लगती। तो बड़ा खट्टू हो गया। फिर बाद में उसे पता चला कि उसने जो डबिंग किया था वो अप्रूव हुआ नहीं, उसकी आवाज़ अप्रूव हुई नहीं, और उसके कारण किसी दूसरे ने उसको आवाज़ दी थी। तो एक्टिंग ये बंदे ने की थी और आवाज़ उसकी दूसरे ने दी थी। तो आप सोचिए कि समझो आपने कुछ काम किया तो उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं मिला, उसके बदले अगर लोगों ने वो, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए आवाज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। मुझे 5 मिनट मिले, मुझे मालूम है, तो 5 मिनट में मैं मेरे फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा।
लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि आवाज का इम्पोर्टेंस सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्टिंग में है या जो सिंगिंग में है, जो वॉइसिंग में है। तो हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्यों ये आवाज वगैरह का ट्रेनिंग, क्या जरूरत है उसकी? तो ऐसा नहीं है, आवाज का ट्रेनिंग सभी लोगों के लिए है। जैसे एक्टर्स के लिए होता है या सिंगर्स के लिए होता है, वैसे लॉयर्स के लिए है, आर्किटेक्ट्स के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, मार्केटिंग के लोगों के लिए है, या मैं तो कहूँगा कि हाउस वाइफ्स के लिए भी है, होम मेकर, बिकॉज दे आर द होम मेकर्स। तो आवाज आपकी अगर अच्छी हो तो आप जो बात बताने वाले हो वो लोगों तक बात जहन में पहुंचेगी और लोग उसके ऊपर विचार करेंगे। नहीं तो कितनी भी अच्छी आपके कितने भी अच्छे थॉट्स हो, फिर भी वो अगर लोगों तक नहीं पहुंचे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए आवाज का बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने डे टू डे लाइफ में। हम कहीं पे भी जाते हैं, आपकी आवाज आपकी पहचान बन जाती है। जैसे आपका चेहरा पहचान बन जाता है, वैसे आपकी आवाज। और आवाज की खूबसूरती के पूरी दुनिया में आपकी आवाज यूनिक होती है। यूनिक यानी आप जैसी आवाज किसी दूसरे को ऊपर वाले ने नहीं दी है, ये बात ध्यान में रखिए। इसके लिए वो यूनिक कहलाती है। आज मेरी आवाज है, वो मेरी आवाज है। मेरे जैसी अगर किसी ने मिमिक्री की तो शायद हो सकती है, लेकिन चंद घंटों के लिए हो सकती है या चंद मिनट के लिए हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकती। तो आपकी आवाज अगर अच्छी हो तो उसका इम्पोर्टेंस इतना है कि आप अपने बिजनेस हो या अपना, अगर आप कोई स्टूडेंट है या कोई गृहिणी है, तो सब वो आवाज अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने ऊपर वाले ने तो आवाज दी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ संस्कार करने जरूरी होते हैं। जैसे बोलने के संस्कार होते हैं, या उसको वॉइस कल्चर कहते हैं, यानी कि बोलने के संस्कार। तो बोलने का ये जो ट्रेनिंग है वो 3 लेवल में मैं देता हूँ नॉर्मली। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अलग अलग फील्ड के आते हैं। कोई मार्केटिंग वाला होगा, कोई LIC एजेंट होगा, कोई आपके लायंस क्लब और रोटरी क्लब वगैरह ये जैसे क्लब है, सोशल क्लब है, या कम्युनिटी सर्विस देने वाले क्लब है, उनके लोग भी मेरे से सीखने के लिए, ताकि आपको लोगों तक पहुंचाने हैं। अगर वो लोगों तक पहुंचाना है तो आपको माइक कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, लोगों को देखना कैसा है, आपके बोलने में क्या क्रोनोलॉजिकल आपको बोलना आना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग होता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले लोगों की आवाज सुनता हूँ। different type of exercises, for example breathing exercises, articulation exercises, or exercises for your tongue, exercises for your cheeks, etc. तो आवाज की प्रोडक्शन के लिए जो जो अपने शरीर के अवयव उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो सभी के लिए एक एक्सरसाइजेस देना जरूरी होता है। तो वो पहले लेवल में मैं सिखाता हूँ। तो पहली लेवल, फर्स्ट लेवल जो होती है वो सबके लिए होती है, ऐसे मानिए आप। अब सेकंड लेवल जो होती है वो होती है जिनको स्टेज के ऊपर जाके कुछ करना है, यानी कि स्पीच देना है या गाना है या एक्टिंग करनी है या समझो इंटरव्यूज वगैरह लेना है, तो उनके लिए होती है। और थर्ड लेवल जो होती है उसमें अभी जो बापू साहब ने बताया वो सब्जेक्ट वहां पे आता है कि फिल्म को आवाज कैसे दी जाए, चाहे वो फिल्म हो या टीवी सीरियल हो, उसमें कोई कैरेक्टर हो उसको आवाज कैसे दी जाए, या डॉक्यूमेंट्री हो तो उसको आवाज कैसे दी जाती है, या वॉइसिंग यानी कि हम लोग जो टीवी पे इश्तेहार वगैरह देखते हैं या रेडियो पे इश्तेहार सुनते हैं, तो उसके लिए आवाज का इस्तेमाल, यानी कि प्रोफेशनल आपको अगर आवाज का इस्तेमाल करना है तो वो किस तरीके से करना चाहिए। अब ध्यान रखिए कि ऐसे कहा गया है कि टोटल स्पीच में आपके आवाज के कारण आपका स्पीच या आपके थॉट्स ये लोगों तक पहुंचते हैं, और उसका परसेंटेज है 40%। यानी कि 40% आपके आवाज के ऊपर डिपेंड होता है और 60% आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कंटेंट नहीं हो तो भी कोई नहीं सुनेगा, अगर आवाज नहीं हो तो भी कंटेंट्स, अच्छे कंटेंट्स बेकार जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? लिखने का काम सीख सकते हैं, जैसे बापू साहब ने बताया, और बोलने का भी काम जो है वो भी सीखना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें आवाज दी है और बचपन से हम लोग आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेशनली आप उसी आवाज को उस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ आइडिया, कुछ ट्रिक्स होती है। तो वो ट्रिक्स अगर आप सीखो तो मैं तो लायन दिलीप देशमुख से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वॉइस का एक वर्कशॉप आपके यहाँ पे कंडक्ट करो सब लायन मेंबर्स के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है कि मेरे पास आने वाले स्टूडेंट्स, खास करके जो यंगस्टर्स है, वो बड़े अच्छे होते हैं, मतलब टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम उनमें ये होता है कि वो बोल नहीं सकते, लोगों के सामने बोलना उन्हें नहीं आता।
किस तरीके से बोलना है, एटिकेट्स क्या है, मैनर्स क्या है, लोगों के सामने मुंह खोलते समय क्या करना चाहिए, कौन से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये अगर हमने उनको सिखाया नहीं, क्योंकि स्कूल में ही हमने उनको कुछ ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया, तो उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उनको बचपन से वो ट्रेनिंग नहीं दिया जो देना चाहिए था, क्योंकि वो लंबे अरसे तक उनके काम आने वाली चीज है। तो वो ट्रेनिंग अगर आप लायंस क्लब अगर अरेंज करता है आपके मेंबर्स के लिए और उनके बच्चों के लिए, तो मुझे खुशी होगी कि वो सिखाया जाए। अब एक्चुअली मेरा जो सेशन होता है ना, मैं ज्यादा चटर चटर नहीं करता। मैं क्या करता हूँ कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप मुझे सवाल पूछिए और उसमें मैं आपको जवाब दूंगा और उसमें से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप में किस आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, तो उसके कारण फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। यस दिलीप जी। अगर पूछना है 2 सवाल खाली पूछ सकते हैं क्योंकि टाइम लिमिट अभी अपनी खत्म हो रही है। जी जरूर, कोई 2 प्रॉब्लम नहीं। मिनट का समय है मेरे पास। चलो 2 सवाल पूछिए, कौन पूछेगा 2 2 सवाल सवाल। वो? तुमचा फोन नंबर द्या सर. ओके, माझा फोन नंबर आहे 98 98 212 212 अगेन 98 98 309 309. 98 212 98 309. माझं नाव आहे दीपक वेलणकर. दीपक वेरणकर. हम्म. थँक्यू सर, सर. आणि जर तुम्हाला एक याचे क्वेश्चन या हा. विषयावरचे जर तुम्हाला व्हिडिओज माझे बघायचे असतील तर हा. YouTube वरती माझं चॅनल आहे, त्याचं नाव आहे अल्टिमेट व्हॉइस अकॅडमी. अल्टिमेट व्हॉइस अकॅडमी, ULTIMAT VOICE ACADEMY, अल्टिमेट व्हॉइस अकॅडमी. तुम्ही त्यावरती बघा, माझे व्हिडिओ आहेत व्हॉइसच्या संदर्भातले, किंवा आपण वेगवेगळे व्यायामाचे प्रकार देखील मी त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवतो बर आणि ते फ्री आहेत, ते तुम्ही जरूर अच्छा. बघावेत. बर बर जरूर. हम्म. चालेल चालेल. क्वेश्चन लास्ट थँक्यू क्वेश्चन. सर. आणखीन कोणाला काही प्रश्न विचारायचा आहे? तर एक प्रश्न असा आहे, हम्म. व्हॉइस कल्चर मध्ये एक्झॅक्टली म्हणजे तुम्ही फक्त आवाजातले चढ उतार आणि कुठे पॉज घेणं एवढंच त्याच्यामध्ये कव्हर आहे की म्हणजे कशा प्रकाराने इफेक्टिव्ह बोलणं तुमचं झालं पाहिजे हेही तुम्ही शिकवता तुमच्या हा, कसं असतं माहितीये का, की आपल्या प्रत्येकाला जो आवाज मिळालेला आहे ना, तो घडतो कसा, तर आजूबाजूला आपला समाज, आपल्या घरातले लोक, बाहेरचे लोक यांचा परिणाम आपल्या बोलण्यावरती होत असतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज पण घुसत असतात. चांगल्या आवाजामध्ये काही इम्प्युरिटीज पण घुसतात. तर पहिल्या प्रथम काय करावं लागतं, की तुमचा आवाज ऐकून त्यामध्ये चांगल्या गोष्टी कुठल्या आहेत त्या निवडून काढायच्या, वाईट गोष्टी किंवा इम्प्युरिटीज कोणत्या आहेत त्या निवडून काढायच्या आणि व्यायामाच्या साहाय्याने तो अधिक लवचिक करायचा. मग तो कुठल्या कारणासाठी विद्यार्थ्यांना वापरायचा आहे, म्हणजे एखाद्याचं उद्दिष्ट असेल की बाबा मी मार्केटिंग मधला आहे किंवा मी सोशल वर्क जास्त करतो तर मला तिथे वापरायचं आहे, किंवा एखाद्याला राजकारणामध्ये पडायचं असेल तर तिथे त्याला आवाज वापरायचा असेल, तर त्या त्या कारणासाठी असे वेगवेगळे व्यायामाचे प्रकार असतात. मग त्या श्वसनाचे असतात, उच्चारणाचे असतात, किंवा मायक्रोफोनची टेक्निक्स असतात, प्रेझेंटेशनची स्किल्स असतात. सगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग हे त्याच्यामध्ये येतं. त्यामुळे ते सगळ्यांना उपयुक्त ट्रेनिंग आहे आणि ते खरं सांगायचं तर सगळ्यांनी घ्यायलाच हवं, कारण आज बोलल्याशिवाय कुठलाही व्यवसाय होऊ शकत नाही. आणि आपण आपली मुख्य गोष्ट काय आहे तर बोलणं आहे, आणि त्याकडेच आपण जास्त दुर्लक्ष करतोय. राइट राइट. ओके, थैंक यू थैंक मेरा यू. अनुभव ऐसा है सर के विषय में कि लगभग 17-18 हफ्ते से एक कोर्स चलता है, सैटरडे संडे, तो सैटरडे नहीं तो संडे, तो उसमें हर दिन हर ट्यूटोरियल में सर एक विषय देते हैं कि ये विषय में आपको इम्प्रॉम्प्टू बोलना है, और वो बोलते हैं कि पॉइंट्स आप लिखो और उसको इलेबोरेट करते जाओ. तो ऐसी आदत लग जाती है कि हम बिना देखे वो अपना विषय रख सकते हैं. ऐसे 10-15 विषय रखने के बाद अपने को एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है और अलग अलग विषय में बात करने के लिए हम तैयार भी करते हैं. तो बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा है, और इनके बहुत सारे मैंने
वर्कशॉप और लेवल 1 और अलग अलग ऐसे वर्कशॉप मैंने किए हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट वेबिनार हमारे दीपक वेलनकर सर जी का ही होगा और उसमें वो इलाबोरेट करेंगे कि कैसे एक्चुअल उनका सेशन चलता है, उसका प्रैक्टिकल करेंगे। 4 लोगों को बुलाएंगे, 4 विषय रखेंगे और कैसा चलता है वो दिखाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है और अलग अलग हर एक आदमी की खामियां क्या है वो तुरंत बताते हैं, तो उनको समझ में आता है कि अभी ये करना है, ये नहीं करना है, ये विषय में ऐसा बोलना है, ये विषय में ऐसा नहीं बोलना है। तो मुझे लगता है कि ये अगला विषय हम लोग वेबिनार का स्पीकिंग स्किल्स करके रखेंगे। ओके सर जी, आप क्या तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए पहली और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसके लिए कोई एज बार नहीं होता, उसके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। यानी कि आप कोई भी लैंग्वेज बोलो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज बोलो, आपको आपकी उम्र कोई भी हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको सिखा सकते हैं और वो उम्र में भी आप सीख सकते हो। आप बोलने के लिए सीखना कुछ इतना कठिन चीज नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो सिस्टमेटिक पद्धति से अगर हो तो बढ़िया रहेगी, बोलना वेलनकर अच्छा सर जी होगा। का एक अच्छा स्टूडियो भी है, वो स्टूडियो में ही सिखाते हैं और वॉइस कल्चर के कि लिए उसके लिए आपको दादर आना पड़ेगा फिर। दादर आना पड़ेगा। जो अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से सभी लोग। वेलनकर सर, thank you very much for your थैंक यू। थैंक यू। guidance and giving time for our participants. मैं नमिता मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ट्यूनिंग और ये अभी आगे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने वाली है, तो उनके विचार हम सुनेंगे और बाद में वोट ऑफ थैंक्स हमारे सेक्रेटरी सुरभि जी देंगी और इसके बाद यह कार्यक्रम समाप्त होगा। नमिता जी। थैंक यू दिलीप जी। सबसे पहले माफी चाहूंगी इतना लेट ज्वाइन करने के लिए। इसमें आपका नुकसान नहीं है, नुकसान मेरा हुआ है कि मैंने इतना अच्छा टॉपिक मैंने मिस किया। जितना दीपक जी को सुना उतने में ही लगा कि इतना सुनना सार्थक हो गया। वाकई जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग इतनी गहरी बात इतने हंसते हंसते बोल जाते हैं, कई लोग इतनी साफ बात भी इतना कॉम्प्लिकेट करके बोलते हैं कि समझ में ही नहीं आता। और उतार चढ़ाव जो आवाज का होता है वो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दीपक जी 25 साल से लाइनिज्म कर रही हूँ सर, पहली बार ऐसा प्रोडक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन और इस तरह का उन्होंने ये टॉपिक लिया। हैट्स ऑफ टू हिम। इस हर चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अगर घर बैठ के हमें कुछ स्किल्स मिलते हैं तो वो उसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एंड आई रियली congratulate and compliment both the clubs and Dilip ji and Anita Rege ji for organizing such fantabulous program. I really missed but can't help it. I was badly stuck. और फोन ऑन रखा, डर भी लग रहा था कि कहीं बैटरी ऑफ नहीं हो जाए, और पता चला जब बोलने का टाइम आया तो वो हो जाए, तो डर भी लग रहा था। और ऑन भी करके बट था ही नहीं नेट, बट मिला। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलने का मौका मिला। आप लोग वो है, आई एम श्योर दिलीप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी भी उन्होंने ट्विनिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, उसमें हम सब शामिल हुए और वो सब बहुत अच्छा है। और अभी कहने को वो इतना मतलब सोचते हैं। और अबव ऑल गवर्नर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे से राकेश जी ने कहा था कि नमिता तुमको दिलीप जी को सपोर्ट करना है। इससे व्हाई नॉट सर, 100%। मैं तो जो भी काम करेगा, जो भी आगे आएगा, मैं हर एक को सपोर्ट करूंगी। So heartiest congratulations and compliment to Dilip ji and Anita ji for inviting me, for giving me the opportunity to share my view and listening to Deepak ji, missing others.
बट थैंक यू सो मच दिलीप जी, आपने जो 1 मिनट मुझे दिया, आई थिंक आई हैड टेकन उससे थोड़ा ज्यादा ही थैंक दिया यू होगा। नमिता थैंक जी, यू सो थैंक यू मच, सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी मैं सुरवे अपने यशवंत सुरवे जी, लायन यशवंत सुरवे जी को आमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू जी। दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए हमारे चीफ गेस्ट हमारे लायन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन लंकन तावरी जी, उनका हम आभार व्यक्त, उनके बिजी शेड्यूल के इंस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल ही हैज गिवन सम टाइम फॉर अस। ओके, तो उनके हम आभारी है। और खास आज के खास हमारे बापू सर और दीपक वेलाइनकर जी, इन्होंने ऐसा स्पार्क छोड़ा है, जो कि जितने भी पार्टी से इतना ऐसा स्पार्क छोड़ा, स्पार्क विल क्रिएट बिग स्टोरी, ए बिग क्रिएशन इन सेल्फ। ऐसे स्पार्क छोड़े हैं, तो मुझे हमें पूरा विश्वास है कि बहुत थैंक्स देना चाहते हैं। हमारे को होस्ट लियो क्लब ऑफ घाटकोपर और लायंस क्लब ऑफ थाने कोपरी, इन्होंने ये अच्छा हमारे प्रेसिडेंट जो दिलीप देशमुख के, उनके जो विचार है वो आप तक सब लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो हम हेल्प की है, तो हमारे क्लब की तरफ से हम शुक्रगुजार है। और अपना खुद का टाइम निकाल के ये प्रोग्राम सक्सेस करने जितने लोगों ने भी ये पार्टिसिपेट किया, उनके लिए तो खास करके उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि बिकॉज ऑफ यू दिस कुड बी अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, एंड थैंक्स अ लॉट टू एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। समाप्त। Congratulations, Dilip ji, and all Very the nice program, participating very nice program. Dilip ji, congratulations, very successful. Yes, very seminar. nice. Very and successful. Thank you Very so much. successful and knowledgeable. Yes, Yes, yes. yes. Thank you for Yes. inviting And us. friends, Very, very nice idea, and yes. Yes, It's a great personality And it is development. well Yes. said, twinning is winning. Let's always twin and win. हम Yes. आगे दिलीप जी हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे और हम उनके साथ चलते रहेंगे और ये काम जो- करते रहेंगे। नमिता जी, आपने पहला पार्ट मिस किया, वो बहुत नॉलेजेबल था. Anyway, Yeah. thank you, Sense India Foundation. Basically, on behalf of International Ray Kurosawa Foundation, Sense India Foundation की तरफ से लायंस क्लब के जो भी सारे ऑफिशियल हैं, सब मैं शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि आपने बापू सर्वेगौड़ मोठा वर्कशॉप तयार करायचा आपण. हा, तर यू पीपल आर इन्व्हायटेड. स्पेशली एक पूर्ण दिवस मी तुमच्या बरोबर घालवणार आहे आणि मग पुढच्या ऍक्टिव्हिटीज करायच्या, कारण दिलीपजींनी आता इनिशिएटिव्ह घेतलाय. सो आय होप इन 2021 we'll have a very good projects, good assignments, and you people will have your own channels and त्याचे results दिसायला लागतील. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Bapu. Thank you. Yes, it was a very, very knowledgeable seminar for us. Yes, yes, Thank yes. you so much. Thanks a lot. Worth attending. Yes. Thank you so much. 100%. Those who have Thank you missed, very they have really missed it. Yes. Yes, Okay, bye bye. Okay, bye bye. All the Bye, best. everybody. All Thank for you so joining, much. everyone. Thank you. Thank you so much. Ah.